مولا کو سکھی آباد رکھے، ہم نے تمہیں پوری کرے، ایمان زیادہ کرے، آپس سے بنائے دور کرے۔ مانگی نے کھائے، مانگی نے کھائے، موکش نہ کھائے، پردان لینے پچھتائے سو۔ مانگی نے کھائے موکش نہ کھائے، پردان لینے پچھتائے سو۔ لون پانی نہ صاحب لکھا لے سے، لون پانی نہ صاحب لکھا لے سے، پیارے کن کری اترتیاں دیسو چکے سر، سرشت گر بنا مکتی نہ ہو جی۔ شافی مولانا حضرت امام پر صلوات پڑھو مومنو، اللہم صلی محمد و آل محمد۔ پھر امام شاہ کے 60 گنان ہیں جو 20 ان میں سے یہ ایک میں نے پاٹ بولا ہے۔ سنسکرت ورڈ جو یوگ ہے، اب ویسٹرن ورلڈ نے امریکہ میں خاص طور پہ اس کو ایکسرسائز کے طور پہ لے لیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یوگ کا مطلب خدا کا رستہ۔ یوگ means to search the way of God۔ یوگی لوگ یا تو چھوٹی عمر سے یا کبھی وہ 40-50 کے ہو جائیں، فیملی کی جواب داریاں پوری ہو جائیں، بچے بڑے ہو کے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں، تو وہ لوگ گھر بار چھوڑ کے جنگلوں میں یا پہاڑوں پہ چلے جاتے ہیں۔ یہ بات صرف ہندوؤں میں نہیں لیکن مسلمانوں کے اندر اور اسلام سے پہلے کی جو میڈل ایسٹ کی کنڈیشن تھی وہاں بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو یاد کیا ہے قرآن پاک میں۔ اسلام سے پہلے ایسے 5-6 جوان لڑکے تھے، ان کو مذہب کا شوق لگا، خدا کو ڈھونڈنے کی طلب ہوئی، چھپ چھپا کے بیٹھا کرتے تھے، جو کچھ جانتے تھے پڑھتے تھے، ڈسکس کرتے تھے۔ آہستہ 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 دل کے اندر طلب بڑھ گئی، ابھیلاشا بڑھ گئی۔ ایسا ہوا کہ تھوڑا کھانا لے کے دور چلے جاتے تھے 2-4 دن کے لیے، وہاں بیٹھ کے خدا کی باتیں کرے، عبادت۔ آہستہ آہستہ ایسا ہوا کہ پھر یہ لوگ ادھر ہی بیٹھے رہے۔ ایک آدمی شہر میں جائے، کچھ کھانا پینا لے آئے، بڑھتے بڑھتے یہ طلب ایسی ہو گئی، عبادت میں بیٹھے ہیں، 2-3 دن نکل گئے، نہ نیند آئی، نہ بھوک لگی، کھانا پڑ رہا۔ یوں کرتے کرتے ایک دن ایسا ہو گیا کہ یہ یوں ہی بیٹھے رہے اور بیٹھے بیٹھے مر گئے۔ خدا قرآن میں ان کا ذکر کرتا ہے، ہوا نے ادھر ادھر کے پتے دھول مٹی لا لا کے آہستہ آہستہ ان کو دفن کر بیٹھے بیٹھے دفن۔ یہ بھی یوگی۔ اس قسم کی بہت سے قصے ہمیں کرسچن ہسٹری میں سے ملتے ہیں، مسلمانوں میں سے بھی ملتے ہیں۔ اصحاب کہف کی طرح کا ایسا ہی ایک ذکر ہماری اسماعیلی ہسٹری میں بھی ہے۔ مولانا امام رفیع احمد علیہ السلام کے زمانے کے اندر 6-7 ایسے ہی جوان تھے، اس میں ایک تو شادی کیے ہوئے بھی تھے۔ بس یہ صبح کی عبادت کے بعد بیٹھے رہتے تھے، مذہبی باتیں کرتے۔ دل کے اندر خیال آیا کہ یہ دنیا کا کھانا پینا، عیش آرام، یہ شوق روحانی زندگی کے لیے برابر نہیں ہے۔ اگرچہ یہ میں باعث شام کے وقت کر رہا ہوں، لیکن میرا اس وقت جو ٹرینڈ ہے وہ روحانی ٹرینڈ ہے، جو ہم کو صبح بیت الخیال کی عبادت کے ساتھ لگتا ہے۔ یہ باعث بیت الخیال کی تو نہیں ہے، لیکن میرا ٹرینڈ ایسا ہو گیا ہے۔ یہ لوگ سوچ میں پڑنے لگے، یہ رنگ برنگ کے کپڑے، یہ عیش و آرام، یہ گھوڑا گاڑی، یہ سب یہ دنیا کی فضول۔ انہوں نے طے کیا کہ ہم سفید رنگ کے کپڑے پہنیں گے
जब भी गर्मी का मौसम आता था तो ये लोग वुलन कपड़े पहनते, और जब भी समर का टाइम आता था, समर के टाइम में वुलन कपड़े पहनते थे और विंटर टाइम के ऊपर पतले कपड़े पहनते थे। ऐसा करने की वजह सेल्फ फिनांस, अपने आप को दुख दिया जाए। आज मैं आपको बड़ी हकीकत की बातें कह रहा हूं। मैंने वाजों में बहुत दफा कहा है कि कोई इंसान की जिंदगी दुख के बगैर कभी नहीं निकली। यहां तक कि नबियों, इमामों, पीरों ने भी अपनी जिंदगी सुख की नहीं निकाली। ह्यूमन लाइफ जो है ना, वो दुखों से भरी हुई है। मैं ये भी कहा करता हूं, एक दफा मैंने हंस के कह दिया है, अल्लाह मेरे यहाँ, अगर आपको कोई दुख नहीं है तो एक दुख, क्योंकि अगर नहीं ढूंढोगे तो कोई दुख आ जाएगा। अगर आप अपनी मर्जी से कोई दुख ढूंढ लो तो दूसरा कोई दुख शायद नहीं आए, लेकिन दुख के बगैर जिंदगी नहीं है। और दुख से दोस्ती करो। अगर दुख से दुश्मनी की तो दुख है ना, वो कुत्ते की तरह है। कुत्ता आपके पीछे भागेगा, लेकिन आप मुड़ के कुत्ते के सामने डट के खड़े हो जाओ तो कुत्ता खड़ा हो जाएगा। ऐसा ही दुख है। दुख से भागोगे तो वो पीछा छोड़ेगा नहीं, और अगर दुख का सामना करोगे तो दुख हल्का हो जाएगा। फरमाने दुख सहन करवानी आदत राख, दुख को बर्दाश्त। तो इन लोगों ने, इनका नाम था इखवानुस सफा। ये हमारी इस्माइली हिस्ट्री की बात है। गर्मी के अंदर वुलन कपड़े पहने, ठंडी के अंदर कॉटन के कपड़े पहने, गर्मी में पसीने से रेब हो जाए, यहाँ तक कि इनको बेहोशी हो जाए, ठंडी में छिछड़ते हुए अपनी जिंदगी को दुख में डालने के लिए भूख प्यास की बंद करी, नींद बंद। इनका नाम था इखवानुस सफा, प्योर ब्रदर या ब्रदर ऑफ प्योरिटी। मौलाना इमाम वफी अहमद अलैहिस्सलाम के ज़माने में हुए, और इस तरह से ये बैठे रहे पहाड़ों की गुफाओं में, उधर ही ये गुजर गए। इनको फॉलो करने वाले इनके पीछे लग गए, और इस तरह की जिंदगी में इनको दिल में सुख, शांति और आराम मिलता। यहाँ तक कि हमारी इस्माइली स्ट्रीम में से ये लोग जुदा हो गए और इस्माइली न रहे। हजरत इमाम ने एक दफा फरमाया था कि इखवानुस सफा इस्माइली थे, लेकिन इस्माइली मजहब में से जुदा हो गए, क्योंकि हमारा ये तरीका नहीं है कि हम घर बार छोड़ के, बिजनेस रोजगार छोड़ के, इखवानुस सफा की तरह या असहाबे कहफ की तरह या हिंदुस्तान के ऋषियों की तरह हम जंगल में जाके वहां खुदा की इबादत करें। ये रास्ता, ये तरीका इस्लाम का नहीं, और पर्टिकुलरली इस्माइलियों का नहीं। इस्माइलियों का तरीका ये है, मौला फरमाया दोनों में बैलेंस करो। फरमाया डू नॉट forsake for one for the other, एक की खातिर दूसरा बिगाड़ो मत। सारा दिन बंदगी ही करते रहो, तस्बीहें लेके बैठे रहो, हमारा मजहब मना करता है। और हमारा मजहब ये भी मना करता है कि जमात खाना भूल जाओ, दुआ बंदगी भूल जाओ, और दुनिया में बस नोट बनाने में ही शामिल हो जाओ, न खुदा याद है न मजहब याद है। ये भी हमारा तरीका नहीं है। हमारा तरीका ये है दुनिया में भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो हम पूरा करें, और मजहबी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी पूरी करें। हम साथ साथ, हमारे ऊपर खुदा ताला ने हमें दुनिया में पैदा किया, एक लड़का पैदा है, एक लड़की पैदा हुई है। लड़का जवान होता है, शादी के लायक हो गया, लड़की जवान होती है, शादी के लायक हो गई। मैं आज ये चलते चलते ये कह दूं कि शादी न करना अगेंस्ट इस्लाम है। शादी करना खुदा की ताबेदारी है। शादी करना मजहब का एक काम है। नबी करीम मोहम्मद मुस्तफा फरमाते हैं कि जिसने शादी नहीं की उसका ईमान आधा है, 50%, और जब तक कि वो शादी नहीं करता उसका ईमान पूरा नहीं होता। क्यों ऐसा कहा? इतना जोर दिया है शादी के ऊपर। हाँ दिलदारो, आज मैं कहना चाहता हूँ आपको, शादी में दुख बहुत है, और आज मैं दुखों ही की बात कर रहा हूँ कि जिंदगी में दुख बहुत है। और अगर कोई कहे कि मुझे कोई दुख नहीं, तो
मैं कहता हूँ भाईजान जल्दी से कोई दुख ढूंढ लो अपनी मर्जी का, दुख छोड़ने वाले नहीं। शादी में दुख है, और ऐसे दुख है कि जो हमें बैतुल ख्याल में काम आ गए। मैं आपके सामने खड़ा, मैं अपनी जिंदगी की बातें नहीं करता, लेकिन आज मुझे कुछ एग्जाम्पल देने के लिए कहना पड़ता है। मैंने तय किया था कि मैं शादी नहीं करूंगा। मेरी 23 इयर्स की एज थी, वाजे करता था, मिशनरी था। मौला ने तालिका भेजा कि उमर लाइक जो मेरे रूहानी बच्चे हैं, मैं उनको अर्ज करता हूं कि शादी करो। मैंने शादी की। शादी के बाद मुझे ये एहसास हुआ, ओहो, शादी के अंदर इतनी बड़ी रूहानियत है। शादी के बाद जब मुझे बैतुल ख्याल के अंदर जो चीजें मिली, शायद मुझे वो कभी ना मिलती। हम लोग शादी से घबराते हैं क्योंकि शादी दुखों से भरी हुई है, और हम दुखों से दूर होते हैं तो कई तरह के दुख उनको मिलते हैं जिन्होंने शादियां नहीं की। पहली चोट पड़ती है उनकी हेल्थ के ऊपर, फिजिकल और मेंटल दोनों। स्पिरिचुअलिटी तो बर्बाद हो जाती है न शादी करने वालों के लिए। तो शादी जो है, मैं इस टॉपिक के ऊपर जाना नहीं चाहता, लेकिन भाई वे चला आया। शादी के अंदर बड़े दुख है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो शादी की है, शादी इसलिए होती है। देखो आज मैं आपको, शादी कोई मजे की चीज नहीं। शादी क्या है? खुदा ताला जो क्रिएटर है उसकी क्रिएशन चालू रहे, इसलिए हम शादी करते हैं कि हमारे बच्चे होंगे और ह्यूमैनिटी जो है, ह्यूमन रेस दुनिया में जारी रहे। और शादी के वक्त रसूल अकरम फरमाते हैं, और निकाह में ये दुआएं भी होती है कि तुम्हें खुदा नेक औलाद दे। नेक औलाद होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, उनको पाला जाए, तंदुरुस्ती देखी जाए, उनकी रूहानी जिंदगी के लिए उनको तैयार किया जाए, उनको रोजगार कमाने की ताकत दी जाए। आखिर वो बड़े हो जाते हैं, अब माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी औलाद की तरफ थोड़ी घट गई, खत्म नहीं हुई, घट गई। तो पुराने जमाने के अंदर ये जो लोग थे अपनी फैमिलीज को छोड़ के चले जाते थे, इस्माइली तरीके ने इसको कर। हालांकि कुछ सूफियों के अंदर इस किस्म के तरीके हैं भी, मगर इस्लाम मना करता है। ये जो मोनेस्ट्रीज बनाई गई, इस्लाम ने कभी मोनेस्ट्रीज नहीं बनाई। इस्लाम के अंदर इस किस्म की रिनंसिएशन नहीं है, लेकिन इस्लाम ये कहता है कि दुनिया में रहो, अपनी ड्यूटीज पूरी करो, लेकिन अपना दिल जो है वो खुदा की मोहब्बत, बीवी बच्चों को भी संभालो, शौहर की खिदमत भी करो, सास ससुर की खिदमत भी करो, बच्चों का भी ध्यान रखो, दुख तकलीफें खुशी से उठाओ और अपनी रूहानी जिंदगी की भी तैयारी करते रहो। यह हमारा तरीका है। तो इन पुराने जमानों के अंदर ये लोग जो ऋषि मुनि चले जाते थे वो योगी थे। योग का या योगा का आज जो मतलब फिजिकल एक्सरसाइजेज हैं, ये तो वेस्टर्न राइटर्स ने या फिलोसोफर्स ने निकाल दी, कुछ इंडिया वाले लेके आए। हकीकत में योग का मतलब खुदा के रास्ते को। इसके लिए हमारे पीर सदरुद्दीन के पोते पीर हसन कबीरुद्दीन के बेटे सैयद इमाम शाह ने 60 गिनान लिखे हैं, 60 गिनान हैं योग के ऊपर। और वो गिनान समझने मुश्किल है, लेकिन उसमें बड़ी कमाल की चीज है, फिलोसफी भी है और इबादत करने के आसन भी है और तरीके भी है। उन पे हमें जाना नहीं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि हमें इन गिनानों के अंदर जो आसन बताए गए हैं हम उनको एडॉप्ट करें, क्योंकि हमारे अंदर ताकत नहीं है। उसमें बड़ी ताकत चाहिए, फिजिकल ताकत भी चाहिए, मेंटल ताकत भी चाहिए। और आज हमारी लाइफ ऐसी है कि उन चीजों के अंदर हम 4-4, 6-6 घंटे हर रोज नहीं गुजार सकते। हमारे लिए आज इमाम ने आसान कर दिया है, और इस आसानी के लिए मैं आपको एक वाकया बयान करूं। ये लेट 20s की बात है, 28 या 29, 1928, 29। हरी सलामत सुल्तान मोहम्मद शाह बम्बई आए और हसनाबाद में दीदार का इंतजाम था, मेहमानियां भी हसनाबाद में से बहुत ने
حسن آباد دیکھا ہوا ہے. صبح صبح آ کے جماعت پہ بیٹھ گئی. مولا کا ٹیلی فون آیا, مجھے کمڑیا کو کہ میں 2 گھنٹے لیٹ آؤں گا. تو بس مشنریوں نے آوازیں شروع کر دی. کالا ڈوڑا بھگت کالا ڈوڑا 32-33 میں گزر گیا. اور بھگت کالا ڈوڑا میں مجھے لگتا ہے کہ ہم 60-70% جماعت, ہر جگہ کی جماعت بھگت کالا ڈوڑا کا نام سنی ہے. بھگت کالا ڈوڑا پولیس کمشنر تھا پروفیشنلی, لیکن یوگ ابھیاس میں اسے بہت انٹرسٹ تھا. اور پرٹیکولرلی یہ 60 گنان جو یوگ کے ہیں, اس کے اندر 84 پوزیشن اور پوسچر ذکر ہے ہمارے گنانوں. 84 آسن ہے. آسن یعنی پوسچر یا پوزیشن بیٹھنے کی. کالا ڈوڑا نے تمام کے تمام کیے. وہ بیٹھتے تھے تو 6 گھنٹے سمادھی میں بیٹھتے. جب یہ کالا ڈوڑا گزر گئے تو سلطان نے ان سے فرمایا, کالا ڈوڑا دنیا میں تھا لیکن 4 آسمان کی خبر جانتا تھا. تو یہ کالا ڈوڑا جو تھے نا, تھوڑا بولتے تھے اور ہمیشہ آنکھیں نیچی رہتی تھی, اپنے جاپ میں پڑے رہتے تھے. اب جو مولا کا یہ میسج آیا کہ میں 2 گھنٹے لیٹ ہوں گا, تو کالا ڈوڑا اٹھ کے نیچے سے 27 یا 28 سٹیپ سے حسن آباد کے اوپر جا بیٹھ گئے. تھوڑی دیر ہوئی تو مشنری سب یہ بھی اوپر جا کے بیٹھ گئے. انہیں دونوں مہان ریسلر آف اسپرچویلٹی, پیر سبز علی, کالا ڈوڑا, یعنی بس بیٹھے. کچھ لوگ آ کے بیٹھ گئے. نیچے دوسرے مشنری واضح کر رہے ہیں. آستے 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 بات نکلی تو کالا ڈوڑا اس طرح سے بیٹھے تھے جس کو ہم پدماسن کہتے ہیں. پدماسن کیا ہے کہ ٹانگوں کو کراس کرنا اس طرح کہ پاؤں کے دونوں تلوے اوپر آ جاتے ہیں. مشکل ہے, لیکن وہ اس طرح سے بیٹھے تھے کہ جیسے کوئی چھوٹا بچہ کہ جس کے اویو جتنے ہمارے بدن کے حصے ہیں بچوں کے کسی نرم ہوتے ہیں, یوں موڑ دیا یوں موڑ, وہ آسن پہ بیٹھے تھے. اور پدماسن ایک اچھی چیز ہے. یوگ کی باتیں یہ کچھ لوگ بیٹھے تھے ان کو کر رہے تھے. سبزلی کہتے ہیں چھوڑ یار, یہ ساری چیزیں بڑی مشکل ہیں, تو کر سکے, باقی یہ ٹھیک نہیں. آج تو مولا نے ہم کو لفٹ بنا دی ہے, لفٹ میں بیٹھو, سوئچ کو دباؤ, ہم اوپر 7 میں آسمان پہ پہنچے. یہ سیڑھیوں سے جانا یہ تیرا کام ہے. ماحول بھی ہوتا تھا. ان باتوں کے اندر 2 بڑے مہان مشنریوں کی باتیں لوگ سن رہے تھے. ٹائم نکل گیا, وصل ہوئی. مولا کے آنے کے لیے اٹھ کے بھاگ کے نیچے چلے آئے. تھوڑی دیر کے بعد جب مولا آئے, سبزلی مشنری مولا کے ساتھ ساتھ جاتے تھے, فرمان سناتے تھے. کالا ڈوڑا آ کے بیٹھ گئے. پہلی ہی مہمانی تھی. سرکار آ کے بیٹھے, فرمان کیا میری دعا سیکھ دے. سبزلی مشنری نے دعا سیکھ دی. بابا پوچھا سبزلی کو کہ میں لیٹ آیا تو تم لوگ کیا کرتے تھے؟ کہتے خدا ہم 2 جنے بیٹھ کے ہم باتیں کرتے تھے. یہ کہتا ہے یعنی کالا ڈوڑا, یہ کہتا ہے یوگ کے آسن کرو اور ایک ایک کر کے اس طرح اوپر چڑھو. اور میں نے کہا آج مولا نے ہمارے لیے لفٹ بنا دی, بٹن دباؤ, لفٹ ہم کو اوپر لے جائے گی, سیڑھیوں سے چڑھنے کی ضرورت نہیں. مولا فرمایا سچ ہے, سچ ہے. آج کا انسان بڑا ویک ہے. اس جیسے آدمی 1000 برس میں ایک ہوتا ہے. کالا ڈوڑا جیسے آدمی کہ جو بڑے یودھے طاقت والے ہوتے ہیں, مظفر 1000 برس میں ایک ہوتا ہے. آج دنیا ہے ویک ہے. ہم ان کو اپنی رحمت میں اٹھا کے اوپر لے جاتے ہیں. رحمت ہے وہ لفٹ, یہ رحمت ہے بخشش ہے. تھوڑا ٹائم ہوا, 2-4 مہینے ہوئے. پہلے میری یہ عادت نہیں تھی, لیکن اب میں واز کرنے سے پہلے تھوڑی سی دعائیں دیتا ہوں, واز کرنے کے بعد بھی دیتا ہوں, لیکن میں نے پہلے کبھی ایسا نہیں کیا. کیا ہوا, حضرت امام کے فرمان لاسٹ اکتوبر میں جو صاحب نے پاکستان میں کیے, وہ پڑھنے کے بعد میں بہت جیپ وچاروں میں چلا گیا. میں نے اس کے اوپر واز کیے 2 کے 3, متزادی سے لے کے سلطان محمد شاہ دار تک. امام سلطان محمد شاہ کا وارہ دیکھا ہے, ساتھ رہا ہوں, اور اس کے پہلے اماموں کی ہسٹری پڑھی بھی ہے. علی سے لے کے
मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह दातार तक इन 48 इमामों ने जितनी दुआएं दी हैं, इतनी दुआएं नहीं दी कि जितनी हाजिर जौमे ने दी है। मैंने तो यहां तक कह दिया कि वो 48 जौमे की सारी दुआएं इकट्ठी करो तो भी शाह करीम हाजिर इमाम के जौमे में जो दुआएं मिली हैं वो उनसे ज्यादा है। और मैं देख रहा हूं हाजिर इमाम की इमामत को 44 इयर्स में मैं देख रहा हूं इसकी दुआएं बढ़ रही है, इसकी दुआएं ऐसी बढ़ रही है। पाकिस्तान में देख लो, साहब अभी आया, पहले आया दुआएं दी, फिर फरमान किए, फिर बीच में दुआएं दी, फिर फरमान किए, फिर आखिर में दुआएं दी और नीचे उतर के वापस आया, फिर दुआएं दी। स्टेज में उतर के सब वापस चढ़ के दुआएं देते रहे, दुआएं देते रहे, दरवाजे तक जाके मुंह फिराया, फिर दुआएं दी। इतनी दुआएं मैंने कभी सोचा भी न था, न कभी हिस्ट्री में पढ़ा कि हमारे इमामों ने जाहिर में हमें जमातों को इतनी दुआएं दी। फरमान पढ़ो, इसकी दुआएं बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? इसको ऐसा करने की वजह क्या? वजह यह है कि हमारी बीमारी बढ़ रही है तो उसके विटामिन बढ़ रहे हैं, हमारे गुनाह बढ़ रहे हैं तो हमको बचाने के लिए दुआएं ज्यादा दे रहा है, दुआएं दे दे के हमें बचा रहा है। हमारी दसों खराब है, पूरी नहीं, कोई है हमारी जमात के अंदर। मेजॉरिटी हम इस्माइली पूरी दसों नहीं देते, मेजॉरिटी लोग रोज जमात खाने नहीं आते, मेजॉरिटी हमारी जमात के लोग जो हैं वो मजहब के जो उसूल है उनके ऊपर अमल नहीं करते। जमात खाने की इज्जत घट गई, जमात खाने का दर्जा घट गया, ध्यान लगना घट गया, दुआ में भी पांव लंबे करके बैठते हैं, जमात खाने के अंदर बातें करते हैं, जमात खाने के अंदर जोक करते हैं, जमात खाने के अंदर आके गीबत करते हैं। हमारी वो तमाम जो सिस्टम है मजहब का हम भूल चुके हैं। हम अपनी मर्जी से चलते हैं, हाजिर इमाम की मर्जी से नहीं चलते। और फिर कहते हैं दीन छोड़ी जे कोई दावे पड़िया, राह चुका अपी साथ उखड़िया। दीन छोड़ी दावे पड़िया, यानी दीन का जो तरीका है उसको हम छोड़ देते हैं, इग्नोर करते हैं और अपनी मर्जी से चलते हैं। तो फिर कहते हैं वो पापी अपने रास्ता छोड़ दे। हम लोगों में आज मेजॉरिटी ऐसे लोग बन रहे हैं कि हम अपनी मर्जी से चलते हैं, शाहपीर की मर्जी से नहीं चलते हैं। शाहपीर ने जो हमें चीजें बताई हुई है हम उसका ध्यान भी नहीं देते। कितने आदमी हैं कि जो हाजिर इमाम के फरमान रोज पढ़ते हैं? आप जानते हैं अपने अपने दिल के अंदर कि आप क्या करते हो। ऐसा होता है, हुआ है कभी कि आप रोज 10-15 मिनट फरमान पढ़ो ताकि आपको पता लगे मेरा मौला क्या चाहता है। हम अपना टाइम दूसरी दुनिया की फजूलात के अंदर गुजार देते हैं। इमाम ये चाहते हैं कि हमारे अंदर सलाह सब मोहब्बत रहे, लेकिन हम उस चीज का कोई ध्यान नहीं करते। मेरा दिल दुखता है दीनदारों, मुझे सारी जिंदगी मेरी जमातों की खिदमत में निकली है, सारी जिंदगी मेरी वाज में निकली है। मैंने अपनी 11 साल की उम्र से वाज़ें शुरू की, लेकिन 38 में इमाम के हुक्म से मैं ऑफिशियली मिशन के अंदर आया। 38 को आप हिसाब करो तो 63 इयर्स हो गए हैं मुझे वाज़ें करते ऑफिशियल हिसाब से, और मैं जिंदगी भर इसी तरह रहूंगा इंशाल्लाह। मेरा दुख क्यों होता है दिल? इसलिए जमातों की अंदरूनी हालत देख रहा हूं। मैं किसी एक खास पर्टिकुलर देश की या जमात की बात नहीं करता, जनरल बात करता हूं। हमारी जमात के अंदर मैरिड लाइफ खराब हो रही, हमारी जमात के अंदर माँ बाप की बच्चों की जो रिलेशनशिप है बिगड़ रही है, हमारी जमात के अंदर ऐसी चीजें घुस रही हैं कि जो हमारा मजहब टॉलरेट नहीं करता। मिसाल के तौर पे मैरिज किए बगैर, निकाह किए बगैर मियाँ बीवी बन के रहते हैं, ये हराम है हमारे मजहब। हमारे मजहब के अंदर होमोसेक्सुअलिटी आ रही है और ये जाहिर हो रही है, बढ़ रही है।
ہمارے مذہب کے اندر اور بھی بہت سی قسم کی بدیاں پیدا ہو رہی ہیں، اور خاص طور پہ یہ کہ ہماری جو میرج لائف ہے نا، گھر ٹوٹ رہے ہیں، فیملیاں ٹوٹ رہی ہیں۔ اس سے نہ صرف دنیا خراب ہو رہی ہے، دین بھی خراب ہو رہا ہے، ہمارا دین خراب ہو رہا ہے، ہمارے اندر ٹالرنس نہیں رہی، لوگ لالچ پڑ گیا۔ نیروبی کی ایک لڑکی کی میں آپ کو ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے۔ نیروبی کی ایک لڑکی کی چھوٹی عمر سے کسی ہندو لڑکے کے ساتھ پیار تھا۔ میں جانتا ہوں خاندانوں کو، میرا دل روتا ہے، میں جانتا ہوں خاندانوں کو، میرا دل روتا ہے، لیکن شادی بڑی ہو گئی تو شادی اسماعیلی لڑکے کے ساتھ ہوئی۔ اپنی اس لو کو وہ کبھی بھولی نہیں۔ یہ لوگ مائگریٹ ہو کے کینیڈا چلے گئے، اور کینیڈا گئے تو میاں بیوی میں کھٹ پٹ تھوڑی ہوتی رہتی ہے۔ بہت برس ہو گئے، 2 بچے ہوئے، ہسبینڈ کا بزنس بہت ہو گیا، $2-4 ملین کا مالک بن گیا۔ اب اس لڑکی نے جھگڑے شروع کیے، برس 1.5 برس تک جھگڑے چلے، بہت لوگ اس کے اندر میڈییٹر کے طور پہ پڑے۔ آخر میں شارٹ کرتا ہوں، انجام یہ آیا کہ ڈیورس ہوا، اور کینیڈا، امریکہ، یورپ کے حساب سے آدھی مل کر عورت کو ملتی ہے، بھلے عورت نے کام کیا کہ نہیں۔ $6 ملین اس کو ملے، اور $6 ملین لے کے لندن چلی گئی، اور اپنے بچپن کی جو لو تھی اس ہندو لڑکے کے ساتھ شادی کر کے بیٹھ گئی۔ ایسا ایک آئسولیٹڈ کیس نہیں ہے، شاید آپ کو یہ چیزوں کا پتہ نہیں ہے، لیکن میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جماعت کی جو اندرونی حالت ہے وہ ہمارے مذہب کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے، اور ہم اپنے آپ کو اسماعیلی کہتے ہیں۔ آج الحمدللہ بہت اچھی حاضری ہے، کیونکہ دوسرے جماعت کے بھی آئے ہیں۔ دینداروں، ہمیں روز جماعت خانے آنا چاہیے۔ دنیا کے 100 کام دھندے چھوڑ کے بھی جماعت خانے بن سکے، صبح بھی آؤ، شام کو بھی آؤ، امام کے فرمان پڑھو اور سنو، مشنریوں کی واضح سے اچھی چیزیں نکالو، اپنے اندر ٹالرنس پیدا کرو، سہنشیلتا، حلیمی پیدا کرو، صبر پیدا کرو، پیشنس پیدا کرو، دکھ اٹھانے کی شکتی پیدا کرو، اور ہمارے اندر سیلفشنس نہیں آنی چاہیے۔ میاں بیوی کے جھگڑوں میں جو مین ریزن ہے وہ سیلفشنس۔ میرا کیا، میں ایسا کیوں کروں؟ میرے پاس بہت سے کیسز آتے ہیں۔ ایک شرم کی بات کریں، 78 ایئرس کا مرد، 72 ایئرس کی عورت میرے گھر پہ آئے، دونوں میں جھگڑا تھا۔ عورت کہتی ہے مجھے ڈیورس چاہیے، میں نے کہا واپس بولو تو ہم کو ڈیورس چاہیے۔ میں نے کہا شرم کی بات ہے، مجھے شرم آتی ہے تمہاری یہ بات سن، جھگڑا کر گیا۔ کینیڈا کے اندر 65 ایئرس کی ایج کے بعد گھر بیٹھے چیک آتا ہے، عورت کو بھی آتا ہے، مرد کو بھی آتا ہے، اور چیک سیپریٹ آتا ہے۔ اسٹارٹنگ کے اندر ان کو $650 $700 دیتے ہیں، اور ہر سال انفلیشن کے حساب سے 3-4% بڑھ جاتے ہیں۔ ابھی جو سیپریٹ آ گئے، اب تک یہ تھا مرد کماتا تھا اور ساری ہینڈلنگ کرتا تھا گھر کے خرچ کی۔ اب عورت کہنے لگی میرا چیک مجھے جدا چاہیے، تمہارا چیک اپنا۔ سیلفش پنا آ گیا، لالچ پیدا ہو گیا۔ میں معافی چاہتا ہوں عورتوں سے، کینیڈا کے اندر یہ جو باتیں بنتی ہے اس میں عورتوں کا زیادہ لاگ ہے۔ انڈیپینڈنس، اچھا کاہے کی انڈیپینڈنس؟ مجھے مرد کی حکومت نہیں چاہیے، یہ چیز مذہب کے خلاف ہے، یہ چیز مذہب کے خلاف ہے، یہ چیز نیچر کے خلاف ہے۔ ہم لوگ غلط راستے پہ جا رہے ہیں۔ محبت اتفاق جیسی کوئی چیز نہیں۔ ظلم تو یہ ہو رہا ہے دینداروں، میاں بیوی جھگڑتے ہیں، بھلے جھگڑے، لیکن اولاد کے اوپر جو اس کا خراب اثر پڑ رہا ہے وہ ہماری فیوچر کی جماعت کو بہت دکھ دینے والی چیز ہے۔ میاں بیوی لڑتے ہیں، ماری جاتی ہے اولاد، اور اولاد چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بچے ہیں مگر وہ سب رجسٹرڈ کرتے ہیں، 2 میں سے ایک کو، یا ماں کو یا باپ کو، ہر بچہ ایک کو ہیٹ کرتا ہے۔ جب میاں بیوی جھگڑتے ہیں تو اولاد میں سے، دونوں میں سے ایک کو، سب بچے جدے اپنی مائنڈ کے اندر یا تو وہ ممی کو ہیٹ کرتے ہیں یا وہ ڈیڈی کو ہیٹ کرتے ہیں۔ ان کے لڑنے سے ان کی
जिंदगियां खराब कर रहे हैं। ये गुनाह हमारे ऊपर पड़ते हैं, हमें मालूम नहीं कि खुदा ताला ने खूबसूरत बच्चे दिए हैं तो इन बच्चों को पालने के लिए खुदा ने दिया है, इन बच्चों की रोजी भी वो देता है, और आप लड़ झगड़ के इन बच्चों की जिंदगी खराब कर रहे हो। ये गुनाह बख्शे नहीं जाएंगे। हमारी तस्बीहां, हमारी नियाज की प्यालियां गैलन भी पिएंगे और इबादत करेंगे, मगर वो बाज ऐसे गुनाह है कि जो खुदा ताला माफ नहीं करता। उनमें ये गुनाह है कि हमने किसी की जिंदगी को खड्डे में डाल दिया। ऐ मोमिनो, उठो, अपने दिल को जगाओ। मैंने जो ये पाठ बोला कि मांगी ने खाए, यहाँ मेरे मांगने का ये पैसा मांगने की बात नहीं कर। मांगी ने खाए मतलब ये है हम अपने मजहब के उसूलों पे नहीं चलते, दूसरों की बातों पर चलते हैं, तो ये हमने मांग के खाया है। अपने मजहब के प्रिंसिपल भूल गए और दूसरों की दखल करके हम लोग चल रहे हैं। मैंने परसों इधर कहा था कि कोई बापू नाम का आदमी इधर आया तो आप में से बहुत से लोग उधर चले गए, मौला को भूल गए, मौला से बैत की है वो भूल गए। हमारे दिलों के अंदर सिंसियरिटी है ही नहीं। ये चीजें सोचने विचारने जैसी है। ऐ मोमिनो, हाथ जोड़ता हूं, अपनी जिंदगी को सोचो क्या कर रहे हैं। मैं ऐसा पर्टिकुलरली इस जमात के लिए मैं नहीं कह रहा, मैं जनरल कह रहा हूँ, लेकिन आपको एडजस्ट कर रहा हूँ। टेप हो रही है, इंशाल्लाह सब जगह जाएगी। मैं ये कहता हूँ, और अपनी जिंदगी को सोचो। अगर थोड़ा दुख उठा के किसी का भला होता है तो दुख उठा लो, अगर थोड़ा दुख उठा के औलाद बचती है तो बचा लो। अगर मियाँ बीवी के झगड़े के अंदर कौन दोषित है वो मैं नहीं कहना चाहता, मुझे पता भी नहीं, लेकिन दोनों में से किसी एक को दूसरे से ज्यादा टॉलरेंस होना चाहिए औलाद की खातिर, और औलाद की खातिर खाली नहीं, जमात की खातिर, क्योंकि ये औलाद बड़ी होकर जमात की मेंबर बनेगी। ये लोग जमात बनने वाले हैं। हमने खाली अपनी औलाद का बुरा नहीं किया, जमात का बुरा किया है, क्योंकि ये लोग फ्यूचर में बड़े होंगे, इनमें से लीडर भी बनेंगे, मुखी बनेंगे, कामड़िया बनेंगे, प्रेसिडेंट बनेंगे, तो इनके दिलों के अंदर जो मजहब की सच्चाई है वो नहीं रहेगी। मांगी ने खाए तेरे मोक्ष न था, पर दान लेने पछताओ से। दूसरों से नकलें करके, दूसरों की कॉपी करके अपनी जिंदगी को बनाने की कोशिश न करो। हमने इमाम की बैत की है, अपने हजर इमाम के फरमानों को पढ़ो और उस तरफ चलो। लून पानी न साहिब लेखा वैसे, लून पानी इसलिए था कि इंसान सबसे ज्यादा और सस्ती में सस्ती चीज नमक और पानी है, तो इसका भी मौला लेखा लेगा। तुमने क्या खाया, क्या किया, उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी। खुदा छोड़ने वाला नहीं है, वो अपनी भूले, हमने कुछ गुनाह किए हैं ये खुदा के, वो बख्श देगा, लेकिन जब हम दूसरों के गुनाह करते हैं वो बख्शा नहीं। मैं अपनी जमात, सारी दुनिया की जमात की बात करता, हर रोज इमाम के फरमान से मैं एक दुआ मांगा करता। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शहदाद भाइयों की मेहमानी में गए और ये फिर फरमान किया, फरमाया ये सब के लिए है। अरे भाइयों ने फरमाया कि तुम इस मजहब में पैदा हुए, इस जमात में तुम्हें जन्म मिला, निहायत ही खुश नसीब हो, इसकी शुक्रगुजारी करो और इसकी शुक्रगुजारी में 40 दाने ईर्षा के रोज निकाला करो कि तुमको इस मजहब में, सतपंथ में और इस जमात में जन्म मिला। इसकी शुक्रगुजारी के लिए, इस खुश नसीबी के लिए 40 दाने जमात के लिए ईर्षा के निकाला करो। ईर्षा के 40 दाने पूरे करके सजदा करो, मौला मेरी जमात को, सारे जहान की जमात हमेशा अपनी पनाह में, छतर में रख, शैतान दूर कर, खुशियां और आबादियां कर, इबादत करो, नेक बनो, किसी पे जुल्म न करो। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर कोई जुल्म करे वो अच्छा, इससे कि तुम किसी पे जुल्म करो। मैं वापस रिपीट करूं, साहब कहते हैं कि तुम किसी पे जुल्म करो, उससे ये अच्छा है कि तुम्हारे ऊपर कोई जुल्म करे और तुम उसको सहन कर लो। सहन करने से गुनाह बख्शे जाते हैं, खुदा हमारे पक्ष में आ जाता है। खुदा उसकी तरफ जाता है कि जो जुल्म उठा देते हैं, दुख उठा देते हैं।
रिटेलिएट अपनी जिंदगियों को साफ पाक बनाना चाहिए। हमारा मजहब प्योर मजहब है, नबियों का दीन है, फरिश्तों का दीन है, लेकिन हमने अपने दीन को समझा नहीं, दीन की किताबें पढ़ी नहीं, दीन को जाना। दुआ पढ़ो तो दुआ पढ़ाने वाले के साथ दुआ पढ़ते हैं। जिस तरह वो पढ़ रहा है आप अपने मन में उस तरह दुआ पढ़ते हैं तो दुआ में दिल भी लगेगा और दुआ का फायदा भी मिलेगा। जमात खाने के अंदर आके अपने दुखों को मौला के सामने पेश करो, लेकिन जमात खाने की क्रियाक्रम के बाद या उसके पहले अगर गिनान बोला जाता है तो आप अपनी मन की मुरादें पेश मत करो, गिनान सुनो। फरमान पढ़े जाते हैं तो अपनी तस्बीह मत निकालो, फरमान सुनो। लेकिन कभी क्रिया पूरी हो जाए फिर बैठ के आप मर्जी से अपनी तस्बीह निकालो, मौला को कहो या मौला ये तकलीफ मुझे आ गई, मैं तेरे दर पे आया हूँ, भीख मांगता हूँ, मदद कर। अल्लाह बिल्ला आपकी मदद जरूर मिलेगा। जमात खाना हजरत इमाम का घर है, ये दाता है। जमात खाने में से मेरी आवाजों में है, आज फिर भी कहता हूँ, औलाद नहीं तो जमात खाने से औलाद मिलेगी। अगर माल चाहिए तो जमात खाने से मिलेगा, मन की मुरादें जमात खाने से मिलेगी। इधर आके तस्बीह निकालो, सजदा करो, उसमें मांगो, मौला देगा। लेकिन अपने मजहब के उसूलों में चलना चाहिए। मोमिन, मेरी दुआएं हैं कि हमेशा आप आबाद और सुखी रहो, दीन और दुनिया के अंदर मौला आपकी मदद करे, आपकी औलाद को आपको सुखी रखे, सलामत रखे, खुशियां और बरकतें देवे, आफतें बलाएं दूर करे, बदियां बुराइयों से बचावे, अपनी फरमान बरदारी में रखे, अपनी मोहब्बत अता करे, अपनी मीठी नजर में रखे। मौला आपको शैतान से दूर रखे, शैतान को आपसे दूर रखे। मौला हाजिर ईमान सलामत रखे, ईमान ज्यादा करे, दसवीं शुक्रीति बनावे, तंदुरुस्ती देवे। मौला घरों में जमातों में इत्तेफाक मोहब्बत सुखी